Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, I will let you know about quantitative research design. This lecture might be useful for all those students who are conducting quantitative research. In management science, economics, psychology, sociology, and some other disciplines of social science, we usually conduct quantitative research. So this lecture will elaborate that how we conduct quantitative research and what are the various types of quantitative research. I myself, Abid Hussain, a research scholar. I would also suggest you to subscribe for more videos by following the youtube.com/learning with Abid Hussain. And if you need any feedback regarding these lectures, so you are requested to write to abidhussain@gmail.com. So let's start from the very first slide, that what is quantitative research design. I will give you an overview first, and after that I will let you know with example. During the late 19th and through the 20th century, strategies of inquiry associated with quantitative research were those that invoked the post-positivist worldview and that originated mainly in psychology. 19th और 20th century में जो strategy inquiry यूज होती थी इसको quantitative research या post-positivist worldview कहलाती, और ये अमूमी तौर पे साइकोलॉजी डिसिप्लिन में यूज होती. These include true experiments and less rigorous experiments. ये रिसर्च जो ना ज़्यादा इसलिए पसंद की जाती थी कि इसमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च थी, और उसको क्या कहती थी, क्वासी एक्सपेरिमेंट्स. क्वासी एक्सपेरिमेंट्स वन टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च इज काजल कंपैरेटिव रिसर्च. इसको या क्वासी एक्सपेरिमेंट्स कहलाते थे या causal comparative research, in which the investigator compares two or more goods in terms of a cause or independent variable that has already happened. इसमें जो ना अमूमन जो रिसर्चर होते थे वो काज और इफेक्ट पे जो ना रिसर्च कराते थे, और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में मुआवजा करते. तो मैंने एक एग्जांपल कोट किया है इसमें कि क्योंकि ये साइकोलॉजी और सिमिलर टाइप ऑफ डिसिप्लिन के लिए यूज होती थी, तो मैंने एक एग्जांपल उठाया, काज एंड इफेक्ट इज स्मोकिंग काज कैंसर. तो स्मोकिंग पे जो ना रिसर्च नहीं कराई जाती थी बल्कि कैंसर पे कराई जाती थी. क्या स्मोकिंग वाकई जो ना कैंसर को फैलाते. तो अगर स्मोकिंग काज कैंसर करती है तो औरतें तो स्मोकिंग नहीं करती, फिर उसमें कैंसर कैसे जो ना दरियाफ्त किया जाता है. ये कुछ एग्जाम्पल है, इस तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल भी, लेकिन मैंने लेक्चर को मुख्तसर करने के लिए एक एग्जाम्पल कोट किया. Another non-experimental form of research is the correlational research design, in which investigators use the correlation statistic to describe and measure the degree of or association or relationship between two or more variables or set of scores. क्रिसवेल ने बताया कि दूसरा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल थे वो नॉन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, जिसमें दो वेरिएबल का आपस में कोरिलेशन या रिलेशनशिप का मुआवजा किया जाता था, और उसकी स्कोर के बिना पे उसके नतीजे यानी आउटकम आ जाती. मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कोट किया, स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्ट्रेस, तो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है. अगर कोई रिसर्चर इस पे रिसर्च करना चाहते तो इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या स्ट्रेस में एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ जाती है या नहीं. जो अगला ओवरव्यू है रिसर्च डिजाइन का, दिस डिजाइन ऑफन इम्प्लाई longitudinal data collection that is examine the development of ideas and trends. Here we will focus on two design, surveys and experiments. ये जो तीसरा ओवरव्यू है
क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का, ये बेस करती है सर्वे पे और एक्सपेरिमेंट पे। सर्वे रिसर्च provides a quantitative or numeric description of trends, attitudes, or opinion of a population by studying a sample of population. It includes cross-sectional and longitudinal studies using questionnaires or structured interviews for data collection, with the intent of generalizing from sample to a population. फॉलर 2008 में इसने बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है अमूमी तौर पे दो चीजों से कराई जाती है, या सर्वे से या एक्सपेरिमेंट से। सर्वे का मतलब क्या है कि एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन लिया जाता है और उसको क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहलाते थे या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज कहलाते थे। ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन डेटा कलेक्शन के लिए यूज होते थे ताकि सैंपल पॉपुलेशन से इसकी राय ले ले और ओपिनियन ले ले किसी इशू पे। सर्वे डिजाइन लॉन्गिट्यूडिनल पॉपुलेशन एंड सैंपल, इसमें मैं एक एग्जांपल कोट किया कि टारगेट पॉपुलेशन ली जाती थी, मिसाल के तौर पे एडल्ट लिए जाते थे एजिड बिटवीन 25 एंड 50 ईयर्स। सैंपल किया था ए ग्रुप ऑफ 1000 पार्टिसिपेंट्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मर्दान के। एडल्ट में जो हेल्थ का जो ना क्राइटेरिया है या जो डिजीजेज है, तो इसके लिए एक पॉपुलेशन सैंपल के तौर पे रैंडमली सेलेक्ट किया जाता था। 1000 लोगों के लिए जाते थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट मर्दान को कोट किया कि एक इलाके से लिया जाता था। और फॉर डेटा कलेक्शन यूज द क्वेश्चनर और यूज स्ट्रक्चर इंटरव्यूज फॉर डीपर इनसाइट्स, ताकि लोगों की फिटनेस का राज पूछा जाए। तो या तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू से या स्ट्रक्चर क्वेश्चनर से, उसके बाद जो भी आउटकम आ जाती थी उसी को जो है ना लोगों के सामने रख दिया जाता। फिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया कि सर्वे और एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक अच्छी बात ये थी कि experimental research seeks to determine if a specific treatment influence and included all those research assist by providing a specific treatment to one group and withholding it from another, and then determining how both groups score on an outcome. मिसाल के तौर पे experiment include true experiments with the random assignment of subject to treatment conditions, and quasi-experiment and use non-randomized assignment. किपल ने इसकी एक एग्जांपल मेंशन की जो कि क्रिसवेल के रिसर्च डिजाइन से ले आई। इसकी मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक रिसर्च कराया जाता है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमिन वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स मैथ टेस्ट कोर्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। इसमें ये चीजें अंदाजा लगाई जाती थी कि क्या एक नया टीचिंग तरीका जो है ना मुतारिफ कराया जाता है ट्रेडिशनल मेथड को छोड़। इसकी रिसर्च डिजाइन कैसे करते हैं? सेलेक्ट 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम टू सिमिलर ग्रुप इन टू डिफरेंट स्कूल्स। एक है ग्रुप ए, student at one schools are taught using the new teaching method, or group B, student at the other schools are taught using the traditional teaching methods. अब 7 या 6 हफ्ते का प्रैक्टिस करने के बाद both groups are taught the same math curriculum with 6 weeks। मिसाल के तौर पे एक नया टीचिंग तरीका मुतारिफ कराया गया जिसमें 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दिए गए, 100 को एक स्कूल से और 100 को दूसरे स्कूल से, जिसका एक ग्रुप ए का नाम रखा, दूसरे का ग्रुप बी का नाम रखा। एक को ट्रेडिशनल मेथड से मैथ्स पढ़ाया गया, दूसरे को नए टीचिंग मेथड से पढ़ाया गया। अब जब 6 हफ्ते गुजर गए, एट द एंड द पीरियड ऑल स्टूडेंट हैड द सेम स्टैंडर्डाइज्ड मैथ टेस्ट। जब टेस्ट लिया गया
तो दोनों का मायार एक जैसा था। आउटकम क्या है? मेजरमेंट कंपेयर द एवरेज टेस्ट स्कोर्स बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। एक है ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। ये वैसे एक्सपेरिमेंट में कराया जाता है, नॉन रैंडमाइज सैंपल में। मिसाल के तौर पे 200 स्टूडेंट और इसी पे ही तजुर्बा किया गया। एक को नए टीचिंग तरीके से बताया गया, तो पुराने तरीके से। आउटकम को फिर जब इन्होंने स्कोर लगाना था, एवरेज स्कोर, तो एक को ट्रीटमेंट और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप्स कहा जाता। मुझे उम्मीद है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन की आपको समझ आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।